Gita means leaders, promulgators, promulgators of the pathway of liberation. How did they become the leaders? By following the Vitraga Marg. And what is that Vitraga Marg? We are going to discuss through this text. And as a result of which, what happened? Bhetaram karma bhuvrata. The karmas got destroyed. They did not destroy the karmas. They are said to be the destroyer of karmas, but the karmas left them and went when they evolved in their spiritual quotient. And as a result of that, Gyataram Vishwatattvanam, they became the knowers of reality. विश्व के तत्वों के ज्ञाता मात्र वो है हमारे वीतराग भगवान, केवली भगवान. वंदे तद्गुण लब्धे. I bow down to them for those three qualities that they have manifested. For those qualities from Bhagwan, the qualities are not going to come. These qualities are there within us. They will manifest provided I understand the philosophy of these leaders of the pathway of liberation. So they have not given the name of Aryanta, Siddha. No, they are only talking about the qualities. Whosoever has these qualities, they are my role models. They are my role models. Parama Ishta, Parameshti. So with this Manglacharan, now coming to the text of Tattvartha Sutra, a very little I'll tell about the text. This is the first text written in Sanskrit, Jain text. Okay. Prior to this, the Jain philosophy, the Jain literature was written in Prakrit language. Prakrit language. So this is the first text written in Sanskrit. Second point, you can note down the points. You can please take a nice fresh notebook and make notes. Lot of notes will be coming to you. So you can listen to the recording again. And I'll also tell you the references from where I'm teaching. So basically, I will be drawing the references from the Sarvartha Siddhi and Rajvartik and Shlokvartik. These are the three commentaries on Tattvartha Sutra. And of course, there are a lot of other texts also, which I will tell later on. So this is the first text written in Sanskrit after the writings in Prakrit. And after the writings in Prakrit, slowly was giving way to writings in Apabhramsha. So after the Agamic literature came the post-Agamic literature, and in between came the Sanskrit text. And during what time and why did our Acharya write in Sanskrit when Prakrit was the trend in which the Jain Acharyas wrote? Jain Acharyas सब प्राकृत में लिखते थे, तो उमास्वाति को क्या जरूरत पड़ी संस्कृत में लिखने की, उसके बारे में हम एक मिनट में विचार करेंगे. सेकंड अबाउट दिस टेक्स्ट इज कि ये एक ही टेक्स्ट है जो दिगंबर श्वेतांबर दोनों समुदायों को मान्य है. बाकी नहीं तो श्वेतांबर आगम को दिगंबर नहीं मानते, दिगंबर साहित्य की खबर श्वेतांबरों को नहीं है. ज्यादातर जो एकेडमिशियंस है, जो रिसर्च करते हैं, उनको तो पता है, लेकिन जो आम आदमी है, जो आम जैनी है, उनको न दिगंबर लिटरेचर के बारे में मालूम है, न दिगंबरों को श्वेतांबर लिटरेचर के बारे में ज्यादा मालूम है. Okay, exceptions are always there, and they are the scholars, the researchers, the Muni Bhagwans, they will be knowing. Otherwise, our children, our parents, they will not be knowing. Okay, third one. This is a text which you can say is like, अगर एक ग्रंथ जैनों का बताना है किसी को, किसी क्रिश्चियन को, मुस्लिम को, नॉन जैन को, कि एक टेक्स्ट ऐसा बताइए जो मैं जैनिज्म के लिए रेफरेंस कर सकूं, तो यही वो टेक्स्ट है जिसको हम बता सकते हैं. बाकी जैसे क्रिश्चियन लोगों में बाइबल है, मुस्लिम लोगों में कुरान है, संस्कृतज्ञों के लिए, हिंदू लोगों के लिए वेद है, उपनिषद है, गीता है, वैसे ही तत्वार्थ सूत्र एक ऐसा टेक्स्ट है जो सारे जैन लिटरेचर में ये एकदम अलग खड़ा होता है और सिरमौर की तरफ है ना. इट स्टैंड्स अपार्ट. It's such a beautiful text, logically written, systematically written, in very beautiful small सूत्र फॉर्म में. सूत्र का क्या अर्थ होता है? सूत्र यानी जिसमें शब्द कम हो और अर्थ की गंभीरता हो, है ना. शब्द कम हो और अर्थ की गंभीरता हो. कहते हैं कि आचार्य जब सूत्र की रचना करते हैं और यदि आधी मात्रा भी बचा लेते हैं, है ना, एक अक्षर
भी बचा लेते, एक मात्रा भी बचा लेते हैं, तो पुत्र उत्सव के समान सुख मानते हैं। यानी दैट वाज द लेवल ऑफ अपरिग्रह। इतना सा भी वो परिग्रह, एक मात्रा का भी वो परिग्रह वहां पर रखना नहीं चाहते थे, उसको भी बचाते। चौथी बात, सूत्र स्टाइल में ऐसा होता है कि पहले एक जो सूत्र बता दिया उसका एप्लीकेशन लास्ट तक चलेगा, और यहाँ पर कोई पूर्वापर विरोध नहीं मिलेगा। पूर्वापर समझते, आगे पीछे विरोध नहीं मिलेगा। जो बात एक बार बता दी सो बता दी, उसका एप्लीकेशन लास्ट तक मिलेगा, उस बात को कोई नहीं काट सकता। ऐसे एकदम बहुत साइंटिफिकली रिटर्न होता है, बहुत सिस्टमैटिकली, बहुत लॉजिकली, बहुत अपीलिंग वे में। और आचार्य नोज व्हाट ही इज राइटिंग, व्हाई ही इज राइटिंग, एंड द मेथडोलॉजी इन विच ही इज राइटिंग। सो वेरी ब्यूटिफुली दिस टेक्स्ट इज डन। ठीक है, नेक्स्ट आकर के, वेरेवर जैन स्टडीज आर इम्पार्टेड, जहां भी जैनिज्म की फिलॉसफी की, रिलीजन की पढ़ाई कराई जाती चाहे वो जैन स्कूल हो, जैन कॉलेज हो, जहाँ जैनिज्म पढ़ाया जाता है ना, जैन इंस्टीट्यूशंस हो, जैन एकेडमीज हो, जैन पाठ्यक्रम हो, चाहे वो अलग अलग संप्रदायों का निकला हुआ पाठ्यक्रम हो या यूनिवर्सिटी लेवल का पाठ्यक्रम हो, वहां पर सेलेक्टेड पोर्शंस या एंटायर टेक्स्ट ऑफ तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जाता है। दैट शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टेक्स्ट। ठीक है, दिगंबर परंपरा के अनुसार इसमें 357 सूत्र है, और श्वेतांबर मान्यता के अनुसार इसमें 346 सूत्र है। टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, कुछ सूत्र क्लब करके रख दिए तो वो 346 हो गए, किसी किसी को अलग कर दिया तो 357 हो गए। बाकी टेक्निकली जो सिद्धांत में डिफरेंस है, फॉर एग्जाम्पल श्वेतांबर में मानते हैं कि कितने स्वर्ग है, कितने स्वर्ग है, 12। दिगंबर में आएगा 16 स्वर्ग। फिर श्वेतांबर में 20 स्थानक, तीर्थंकर गोत्र के 20 बोल बताते हैं, जबकि तत्वार्थ सूत्र में 16 कारण भावना आती, 16 16 बोल आते हैं, है ना। तो इस तरीके से छोटी छोटी डिफरेंसेस आपको मिलेगी। बाकी अदरवाइज मोटे तौर पे इसमें श्वेतांबर दिगंबर मान्यता में कोई भी फर्क नहीं आता है। इसलिए ये दोनों संप्रदायों को मान्य है, और दोनों ही इसको अपना अपना कहते हैं। दिगंबर के अनुसार उमा स्वामी ने इसको लिखा, और श्वेतांबर में इनको उमा स्वाति के नाम से जानते। और दिगंबर परंपरा में ऐसा मानते हैं कि वो कुंद कुंद की आमना के शिष्य थे। कुंद कुंद के परंपरा के, मतलब उन्हीं के शिष्य या उन्हीं के परंपरा को आगे बढ़ाने वाले, कुंद कुंद के नेक्स्ट यदि किसी का नाम लिया जाता है तो वो उमा स्वामी का नाम लिया जाता है। और हो सकता है वो उनके डायरेक्ट शिष्य रहे हो या परंपरा से शिष्य रहे हो, इसके बारे में हमें ज्यादा कोई जानकारी नहीं मिलती है। उमा स्वामी के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती है। कम से कम लिख करके प्रसिद्धि पाने वाले आचार्य में हमारे कुंद कुंद के ये पट्ट शिष्य उमा स्वामी ऐसे हुए। इनका समय विक्रम की शताब्दी का अंत, पहली शताब्दी का अंत, और द्वितीय शताब्दी का फर्स्ट हाफ, दैट इज द टाइम फिक्स्ड फॉर उमा स्वामी बाय द रिसर्चर्स। ठीक है, तो ये उनका समय है। और उनका अपर नाम गृद्ध पिच्छाचार्य, जैसे कुंद कुंद के लिए गृद्ध पिच्छाचार्य आता है, गृद्ध यानी वल्चर, वल्चर की पिच्छी रखने वाले इनका नाम के कारण इनका नाम भी गृद्ध पिच्छाचार्य, ऐसे कुंद कुंद के लिए भी नाम मिलता है, और उमा स्वामी के लिए भी दिगंबर लिटरेचर में नाम मिलता है। श्वेतांबर में यह नाम नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर पिच्छी वर्ड नहीं यूज होता है ना, वहां पर तो ओगा पात्र इस तरीके से नाम आएंगे, तो इसलिए ये नाम वहां पर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें उनके जीवन के बारे में ज्यादा नहीं मालूम। ठीक है, तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि समग्र जैन समाज का ये एक प्रामाणिक, एक रिप्रेजेंटेटिव टेक्स्ट है। इट रिप्रेजेंट्स द एंटायर जैन फिलॉसफी विच इंक्लूड्स द जैन फिलॉसफी विच इंक्लूड्स सिद्धांतों में, इट इंक्लूड्स द स्पिरिचुअलिटी, द मेटाफिजिक्स, साइकोलॉजी, ethics, epistemology, and aesthetics and logic. तो there are 5 branches of philosophy. मेटाफिजिक्स, तो इसमें आप देखेंगे मेटाफिजिक्स है, एथिक्स इसमें एथिक्स है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है, रत्नत्रय की बात है, ज्ञान की बात है, 5 ज्ञान की बात है, प्रत्यक्ष परोक्ष प्रमाण की बात है, तो इसमें अनेकांतवाद है।
5वें अध्ययन में अर्पिता अनर्पित सिद्धे बोल के स्याद्वाद बोल करके इसमें लॉजिक की बात आई, और पहले ही चैप्टर में लॉजिक की बात आई है। तो इस तरीके, एंड व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ द सोल, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ मोक्ष मार्ग, व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ लिबरेशन, इन सब के बारे में भी अपने को इन सूत्रों के माध्यम से इन्फर करना पड़ेगा। लिखा हुआ नहीं है ब्यूटी के बारे में, इन्फर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये एक बहुत ही प्रतिनिधि ग्रंथ है। अब नेक्स्ट इसमें सूत्र रूप है, तो सूत्र यानी गद्य रूप में है। ये मतलब पोएट्री रूप में नहीं है, पद्यात्मक नहीं है, गद्यात्मक है। और छंद नहीं है इसमें, कोई एक मीटर को यूज करके पूरा लिखा गया है ऐसा नहीं है यहाँ पर। लेकिन फिर भी कम से कम शब्दों में लिख करके गहराई तक ले जाने की जो बात ये शास्त्र करता है, तो इसका तो बार बार पारायण करे तो भी कम है। मैं मेरा अनुभव आपके सामने रखना चाहती हूँ कि इन 1987 itself I had memorized this whole text. And then when I did my MA Genealogy, I got to learn more in detail about it. And I have been teaching this text for almost now 35 years, and I'm not yet tired. I can teach I can read for another many times, and I will never be tired. I'll enjoy each time of it. So I just felt I can do some service to the people who want to understand this deep Jain philosophy. So I uh, took up this on me, the onus on me, to discuss the contents of this text. And how long we will do it and how many classes we'll do it, it all depends on your demand and your interaction. Okay, I will try to take you as deep as possible. I may cover just one sutra in 3 classes, or I may cover 10 sutras in 1 classes. That I cannot assure. But if you say, no, madam, in the given time you complete it, I will do it. I can do it in 1 hour also. Okay, so let us be open about it. Let us learn and help each other. Please mute everybody, and please make me the co-host. I'm the co-host. I can mute everybody. Okay. Next coming sutra. What is the meaning of the word sutra? There are 3 meanings for the word sutra. Sutra means dhaga, thread. How a thread ties all the beads in a garland or in a necklace. Likewise, this text sutra, it ties the philosophy given by the Jinas, given by the Tirthankar Arhat Kevali Jinas. है ना, धागे में पिरो करके दिया है। सेकंड आकर के साधक, सूत्र also means an aspirant who wants to tread, who wants to discover, who wants to research on the pathway of liberation. Sadhak. Third is Sanket. All these sutras are only indicative of things. And through the other commentaries, we have to go and open these sutras. Just not read them like a newspaper, rather open. Open means uncover what these sutras are telling us. ठीक है, हाँ, there's a very beautiful gatha which says, जहाँ सुई स सुत्ता पड़िया वीन विनसई, तहाँ जीव स सुत्ता संसार not get lost, even though it is lost in a garbage. But when it is threaded, you can easily find it. When it is not threaded, it will be lost. In the same way, the jiva who is empowered with the Shrut Gyan, scriptural learning, he will not get lost in samsara. So what what text you're going to learn today, if you take it very beautifully, it will come with you in your future lives, and there it will guide you and help you not to get carried away by the karmic emergencies, by the karmic incidents that will engulf the jiva in the future births. That is the power of this learning. So, charitra is not tadubhayagami. In this birth, if you're a muni or a shravak, next birth you matlab we. Whenever I say we, I mean the jiva will not be a muni or shravak. But if the jiva empowers himself or herself with the gyan, with the shraddha, that gyan and shraddha will
travel with him in his next life. Then maybe 3-4 births, this gyan will be with the jiva. But if it is not applied, the jiva will lose it. This knowledge also will fade from his memory. So application of what we are going to learn is more important than the text itself. So ज्ञान शास्त्रों से नहीं आता है, ज्ञान एप्लीकेशन से आता है. अगर शास्त्रों से ज्ञान आता तो सबको केवल ज्ञान हो जाता. सब शास्त्र तो पढ़ ही रहे हैं, सब सम्यक दृष्टि हो जाते, सब मुनि हो जाते, सब केवली हो जाते. तो शास्त्रों से ज्ञान नहीं आता है. ज्ञान में तो सिर्फ पढ़ने का, सुनने का होता है, बाकी तो चिंतन करके जीव को समझने से ज्ञान होता. सो दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट आकर के कमिंग टू द टाइटल, justification of the title, Tattvartha Sutra. So according to the Shwetambar Parampara, they also call it as Tattvarthadhigama Sutra. Tattvarthadhigama Sutra is the name that you'll find in the Shwetambar tradition, but in Digambar tradition they call it as Tattvartha Sutra. Shwetambar में दोनों मिलेंगे, कहीं तत्वार्थ सूत्र, कहीं तत्वार्थाधिगम सूत्र. ओके, चलिए नेक्स्ट आकर के मैक्सिमम अगर कोई ग्रंथ का रीप्रिंट या पब्लिकेशन हुआ है जैन समाज में, तो हम कह सकते हैं कि ये तत्वार्थ सूत्र का हुआ. सामायिक प्रतिक्रमण के पाठ का पब्लिकेशन तो होता ही है जैन समाज में, लेकिन अगर टेक्स्ट की बात करें, है ना, तो ये तत्वार्थ सूत्र ही आपको लगभग मेरे ध्यान में मैंने तो 20-25 एडिशंस देखे. जैसे केवल मुनि का तत्वार्थ सूत्र, सुखलाल जी का तत्वार्थ सूत्र, नथमल टाटिया का दैट विच इज तत्वार्थ सूत्र. फिर ये टीकाएं देखी है, फिर सिलेबस में बुक्स देखी है, फिर छोटी छोटी पॉकेट बुक्स देखी है. तो आप हर कोई एक इंस्टीट्यूशन जो है इस तत्वार्थ सूत्र को अपने पढ़ाई के लिए छपवा ही देते हैं. सो दैट शोज द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस टेक्स्ट, है ना. इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितना सर्वाधिक प्रिय ग्रंथ सबको रहा है. ठीक है, चलिए. तो नेक्स्ट अब इसका जो टाइटल है तत्वार्थ, इसको हमें स्प्लिट करना पड़ेगा. तत् प्लस त्व प्लस अर्थ, क्या हुआ मीनिंग? तत् प्लस त्व प्लस अर्थ. तत् का मतलब है दैट मतलब ऑल सब्सटेंसेस, वेदर इट इज जीव, अजीव, आत्मा और यूनिवर्स, सबको आपको इस तत्व में रखना पड़ेगा. तत् यानी वह यानी वस्तु यानी जीव, अजीव. तो जीव में आत्मा बोल दीजिए, अजीव में पूरा यूनिवर्स बोल दीजिए. तो तत्व का मतलब है उसका जो एसेंस है, उसका जो भाव है, उसके जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज है, उसको त्व बोलेंगे. ठीक है, प्रॉपर्टी. सो तत् इज द सब्सटेंस, त्व इज द एसेंस. इन दोनों से जो बना हुआ है उसको बोलेंगे अर्थ, पदार्थ, भाव वाला. ठीक है, तो इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र में, सूत्र फॉर्म में किसकी चर्चा है? तत् यानी उस तत्व की, जीव, अजीव, आदि, पूरे यूनिवर्स के एसेंस की, और उस एसेंस से भरे हुए वस्तु की. तो 3 बातें आई. तत् यानी वस्तु, त्व यानी उसका एसेंस, एंड अर्थ मीन्स वो वस्तु जो ये एसेंस वाली है. तो इस प्रकार अर्थ, तो तत्वार्थ. तो ये तत्वार्थ किसकी पढ़ाई है? एक तो आत्मा की, और आत्मा के साथ साथ पूरे यूनिवर्स की, पूरे ब्रह्मांड की पढ़ाई. तो यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि मोक्ष तो जीव का होना है, तो जीव तत्व की चर्चा कर लेते ना, पूरे यूनिवर्स की चर्चा करने की क्या जरूरत है ना. जीव को बता देते, जीव के बारे में बता देते, जीव का कल्याण हो जाता. इतना पूरा एनसाइक्लोपीडिया यूनिवर्स का देने की क्या जरूरत? तो इसका कारण ये है कि ये जो जीव है ना, ये संसार में अकेला है. हर एक जीव अकेला है, हर एक जीव अकेला है, हर परमाणु अकेला है, हर द्रव्य गुण पर्याय इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है. Every dravya is independent of another dravya, every gun is independent of another gun, every paryay is independent of the purva and the purva par paryay.
So the whole universe is uncreated, indestructible, self-regulated, working according to the laws of nature. The laws govern the universe. And God is not the one who has made these laws. God is one who knows all the laws. क्योंकि पूरी दुनिया ईश्वर को जगत का कर्ता मानती है. या तो कर्म करते हैं या ईश्वर करते हैं, यानी आत्मा नहीं करते हैं. अपने को अकर्ता हम देखना चाहते हैं. लेकिन जैनिज्म कहता है कि पूरा यूनिवर्स जो है वो स्व संचालित है, वो अकर्ता है. सबके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है. कर्ता कर्म संबंध विद इन वन द्रव्य होता है. दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है. ये जो फिलॉसफी है ना, जैन फिलॉसफी, इसको तो एकदम क्या बोले, कुंद कुंद के बारे में बोलते ना कि पूरे धरती को सोने के पत्र बनाए और माणक मोती आदि से इनको लिख दे तो भी हम इसकी महिमा नहीं बता सकते. इसकी जैन फिलॉसफी है ना, इतनी इतनी मतलब ये अपने को केवल ज्ञान तक ले जाने वाली पढ़ाई है. ठीक है. तो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बताते, तत्व अर्थ तत्वार्थ. तो अब ये जो अधिगम, अधिगम का मतलब होता है स्टडी. अधिगम का अर्थ होता है स्टडी. तो स्टडी ऑफ द तत्व विच इज लाइक दिस, तत्वार्थ वाला. ठीक है. तो इस प्रकार तत्वार्थ अधिगम का अर्थ बताया और तत्वार्थ सूत्र का के नाम की सार्थकता बताई. नाउ कमिंग टू द चैप्टराइजेशन ऑफ दिस टेक्स्ट. कितने चैप्टर्स हैं आप सब जानते हैं. ऐसा नहीं है कि आप लोग सब पहली बार तत्वार्थ सूत्र पढ़ रहे हैं. तो आप सब जानते हैं कि इसमें 10 चैप्टर्स है. और 10 चैप्टर्स में क्या है, मैं 2 पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं. आप लोग कोई चाहे तो मैं 1 मिनट सुन सकती हूँ, अगर आप अच्छे से बता सकते हैं कि 10 चैप्टर्स में किसकी बात है. आप में से कोई बोलना चाहता है तो मैं 1 मिनट रुक सकती हूँ. कोई इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो मैं 1 मिनट रुक सकती हूँ. ठीक है, तो मैं ही बता देती हूँ, है ना. पहले तो ये 10 चैप्टर्स को हमें 3 हेडिंग्स में डिवाइड करना. फर्स्ट चैप्टर इज अबाउट ज्ञान. ज्ञान मीमांसा. मीमांसा यानी स्पेक्युलेशन. फर्स्ट चैप्टर में ज्ञान क्या है, क्योंकि जीव है तो जीव का स्वरूप ज्ञान है. तो ज्ञान की बात फर्स्ट चैप्टर में करें. ज्ञान से हमें किसको जानना है, तो सेकंड से लेके 5th चैप्टर तक ज्ञेयों की चर्चा है. ज्ञान ज्ञेय, सेम लाइक प्रवचन सार. ज्ञान ज्ञेय एंड चरणानुयोग सूचित चूलिका जैसे. तो फर्स्ट इज ज्ञान, 2 to 5 इज अबाउट द ज्ञेय एंड 6 to 10 इज अबाउट चारित्र. तो इस प्रकार ये 3 फिलोसॉफिकली हम इन तीनों को स्टडी करेंगे. सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है ये 10 चैप्टर्स का, उसमें फर्स्ट से लेके 4th चैप्टर तक जीव तत्व की बात है. फर्स्ट से लेके 4th चैप्टर तक जीव तत्व तत्व की बात है. और 5th चैप्टर में अजीव तत्व के माध्यम से जीव तत्व को समझाया. इंसिडेंटली अजीव भी समझा दिया, लेकिन उस 5th चैप्टर में इतने ब्यूटीफुल 6 सूत्र आपको मिलेंगे जो सीधा हमें जीव तत्व की बात को गहराई से ले जाने का काम करता है ना. आचार्य का मकसद अजीव समझाना नहीं है, क्योंकि अजीव तो अनंत है, यूनिवर्स है, वो पूरा थोड़ी बता सकते. लेकिन अजीव के माध्यम से क्यों वो सोच रहे हैं, सुनिए. कि उनको लगा कि पहले ही पहल में उन्होंने जीव को समझा दिया और सब जीवों को अपना जीव समझ में आ गया होगा. फिर भी आचार्य को लगता है अरे नहीं, नहीं समझ में आया होगा. तो कहते हैं कि मैं अजीव के माध्यम से तुम्हें जीव तत्व बताता हूं. तो 5th चैप्टर इज अबाउट अजीव तत्व. 6th चैप्टर इज अबाउट अशुभ आश्रव. 7th चैप्टर इज अबाउट शुभ आश्रव. 8th चैप्टर इज बंध अधिकार, बंध के बारे में, बंध तत्व. एंड 9th चैप्टर इज संवर निर्जरा. एंड 10th इज मोक्ष तत्व. तो ये क्लासिफिकेशन आपको जब तक तत्वार्थ की क्लास में बैठेंगे तब तक आपको याद रखना है.
ठीक है, वापस ज्ञान, ज्ञेय, और मैं क्वेश्चंस पूछूंगी, है ना। जैसे ही मेरी क्लास खत्म हो जाएगी, आप लोग मुझे क्वेश्चन नहीं पूछोगे, मैं क्वेश्चन पूछूं। इसलिए आप लोग सब अच्छे स्टूडेंट्स के जैसे, अच्छे बच्चे के जैसे नोटबुक, डायरी, पेन लेके बराबर क्लास में रहना। इसको आप लेक्चर मत समझिए, इसको आप टॉक मत समझिए, इसको आप एक पागल टीचर से लेसन्स के जैसे आप समझ लीजिए। मैं सच में पागल हूँ, जो इतना सुंदर तत्व ज्ञान पा करके, जिसका अज्ञान, मिथ्यात्व, मोह गल रहा है या गल गया या गल जाएगा, वो वाली पागल हूँ। ठीक है ना। तो चलिए, तो ये समझ में आ गया 10 अध्याय, 2 टाइप्स, 2 वेज में कैसे इसको समझना, है ना। ज्ञान, ज्ञेय और चारित्र। एंड सेकेंड इज जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा एंड मोक्ष। और इसका एक अपर नाम है, क्या नाम है? मोक्ष शास्त्र। इसको मोक्ष शास्त्र भी कहते हैं, है ना। कितनी किताबें मोक्ष शास्त्र के नाम से इसकी छपी हुई आपको मिल जाएगी। अगर कोई बैठ करके एक म्यूजियम बनाए ना, कहाँ कहाँ वर्ल्ड में से तत्वार सूत्र छपी हुई है, तो पूरी एक म्यूजियम बन जाएगा। इतने एडिशंस, इतने वर्षन, मतलब वर्षन्स तो सेम नहीं है, सेम ही है, अलग अलग जगह से निकली हुई। जैसे बाइबल है, आपको पॉकेट साइज बाइबल से लेकर के एनलार्ज साइज बाइबल, डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट। तो इस तरीके से ये तत्वार सूत्र अपना वैसा है। नेक्स्ट आकर के जो बात हमें करनी है कि इसके ऊपर टीकाएं, कमेंट्री लिटरेचर ऑन तत्वार्थ सूत्र। तो सबसे पहले इसके ऊपर जो प्रमुख टीका है, श्वेतांबर में मानते हैं कि उन्होंने खुद ने इसके ऊपर एक स्वपज्ञ भाष्य लिखा, जो कि आज अप्राप्य है, अकॉर्डिंग टू श्वेतांबर। अकॉर्डिंग टू दिगंबर, सबसे जो पुरानी टीका हमें मिलती है इसकी, वो है पूज्यपाद स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि, जो कि बहुत अच्छी है, बहुत इंपॉर्टेंट है और पढ़ने लायक है। मैं जब कॉलेज में पढ़ रही थी, तो हमारे वैष्णविज्म डिपार्टमेंट के जो एचओडी थे, नरसिम्हाचारी सर, वो संस्कृत में ये पढ़ाने के लिए जाते थे साध्वी भगवंतों को। मूर्ति पूजक, श्वेतांबर परंपरा में मूर्ति पूजक साध्वियों को वो इंग्लिश, सॉरी, संस्कृत से तत्वार सूत्र पूरा पढ़ाते। और मैं जब पढ़ी थी एमए जेनोलॉजी में, तो हमारे प्रोफेसर थे वसंत राज जी, उनके पास हमने तत्वार्थ राजवार्तिक संस्कृत में पढ़ा। उसके बाद कलघटगी जी के बाद फिलोसॉफिकली इसको कैसे पढ़ना वो समझा, है ना। एक तो ट्रेडिशनल वे में छगनलाल जी शास्त्री, वसंतराज जी से पढ़ा, और फिर फिलोसफिकली, एपिस्टेमोलॉजिकली, और इसको कैसे इंटरप्रेट करना, वो हमने कलघटगी जी से सीखा। और फिर डॉक्टर जयंतीलाल जी से हमने इसको कैसे स्पिरिचुअली इसको अप्लाई करना, वो हमने सीखा। So I feel so blessed to study from all these legendary teachers. And whatever I am today, it is because of the efforts that our teachers have put on us. And I remember them all today. And I thank them for making me capable of talking to an august audience like you. So Pujyapad Swami, and I have read his Samadhi Tantra, and I've read his Ishtopadesh, and the very beautiful texts in संस्कृत में टीका उन्होंने लिखी है, और समाधि तंत्र संस्कृत में है, इष्टोपदेश भी है। तो वेरी वेरी ब्यूटिफुल टेक्स्ट, वेरी सिंपल संस्कृत इष्टोपदेश। एंड देन अकलंक देव, जिनको भट्ट अकलंक देव कहते हैं, जिनके लॉजिक के सामने बुद्धिस्ट लॉजिक टिक नहीं पाया। यहाँ पर साउथ से उनको यहाँ से भगा दिया गया, मतलब वो खुद भाग गए यहाँ से, जब वो जीत नहीं पाए जैन लॉजिशियंस के पास, और तो उनको यहाँ से जाना ही पड़ा। उस समय राजा महाराजा ऐसे थे कि जो वाद विवाद में जीतता था राजा, उनको पेट्रोनाइज करता था, बाकी लोगों को चला जाना होता था। तो इस प्रकार अकलंक देव का भी बहुत बड़ा इतिहास है, साहित्य है, राजवार्तिक। थर्ड है विद्यानंद जी का श्लोक वार्तिक, ये भी बहुत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है आचार्य समंत भद्र का गंधहस्ती महाभाष्य, जो कि अप्राप्य है। इसके ऊपर गंधहस्ती महाभाष्य है। फिर आचार्य श्रुत सागर जी का तत्वार्थ वृत्ति है। और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा है, ढूंढारी भाषा में, गुजराती में, मराठी में, हिंदी में, इंग्लिश में, तमिल में, कन्नड़ा में, आपको सब लैंग्वेजेस में आपको ये तत्वार्थ सूत्र के वर्जन्स मिल जाएंगे। और श्वेतांबर परंपरा में लास्ट में हुए थे पंडित सुखलाल जी, जो कि
सूरदास थे। सूरदास थे मतलब आंखों से नहीं दिखता था, फिर भी उन्होंने इसके ऊपर कलम चलाई। और वो श्वेतांबर परंपरा में साधु साध्वी भगवंत सुखलाल जी की बुक को पढ़ते हैं। और दिगंबर परंपरा में हमें मिलता है आधुनिक टीकाकार में फूलचंद जी सिद्धांत आचार्य, कैलाश चंद जी सिद्धांत आचार्य, पन्नालाल जी सिद्धांत आचार्य और रामजी भाई दोषी आदि बहुत सारे मिलते। और हाल ही में एक देखने को मिली थी तत्वार्थ मणि प्रदीप बाई हुकमचंद जी भारत, जो कि परमागम कोर्स में प्रिस्क्राइब्ड है, वो हमें देखने को मिली। और एक बुक जो इंदौर से छपी है, मैं चाहती हूँ कि आप सब वो बुक लेकर के बैठे और उसका पीडीएफ लेकर के बैठे। उसका नाम है तत्वार सूत्र इन द फॉर्म ऑफ रेखा चित्र एंड तालिकाएं, चार्ट्स के रूप में। एंड वी हैव डन द इंग्लिश एंड तमिल ट्रांसलेशन ऑफ दिस बुक and it is on the editing table, and very soon by March in the seminar it will be published. So this is the work, and I have made 40 videos related to this for in-house kya bole, for the student community. So university gave us a sponsor and we made those videos on that chart book. So we have translated it, put it in the video form, and this book and many other books and my learnings related to this Tatvar Sutra made me to come up for this lecture series for JAX. Okay, so now we'll start the text. So I did the Manglacharan. So Manglacharan में three things नमस्कार हो गया है. Now very importantly, I have to tell you about the importance of the Manglacharan. First of all, what is the meaning of the word Mangalacharan? Mangal Acharan. Mangal Acharan is Mangalacharan. And what we think Mangalacharan, अच्छा गा दिया हो गया काम खत्म, मंगलाचरण हो गया। मंगल आचरण शुरू ही नहीं हुआ, इसलिए जीवन में मंगलाचरण नहीं हुआ। वो मंगलाचरण तो बहुत किया गाने वाला, लेकिन अभी वो मंगल आचरण अभी जीवन में शुरू होना बाकी है ना। और मोक्ष मार्ग पर आना ही मंगल आचरण है, मोक्ष मंगलाचरण नहीं है। मोक्ष मार्ग पर आना मंगल आचरण है। तो उस मंगल आचरण, वो मंगल आचरण हमारे जीवन में शुरू हो, इसलिए हमने वो जो मंगलाचरण पूज्यपाद स्वामी ने दिया, हमने उसको याद किया। वंदे तद्गुण लब्ध, जब वो हमारे जीवन में लब्ध यानी प्राप्त होगा, तब हमारे जीवन में मंगल आचरण प्रारंभ होगा। हम मंगल शब्द को लेते हैं। मंगल शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक है म विद द डॉट अबाउ एंड गल, दोनों को अलग कर, म विद द डॉट अबाउ प्लस गल। तो मंग प्लस गल, मंग का मतलब यहाँ पर होता है पाप, और गल यानी गल गया। जिसका पाप गल गया उसको कहते हैं मंगल। और वो कैसे गलेगा, तो नेक्स्ट वाला मीनिंग देखते हैं। म के ऊपर डॉट और ग को इधर रख दीजिए, मंग प्लस ल को अलग कर दीजिए, तो हो गया मंग प्लस ल। इसका मतलब क्या हुआ, मंग यानी शुभ, शुभ को लायती, लाता है वो मंगल। एक तो अशुभ चला जाएगा और एक शुभ से जीवन भर जाएगा, तो उसको कहते हैं मंगल। और जगत में चार मंगल है, अरियंत सिद्ध साधु और केवली प्ररूपित धर्म ही मंगल है, बाकी सब कुछ अमंगल है। हाँ, रिलेटिवली गृह प्रवेश होना, घर में बच्ची की शादी होना, लड़का होना, बच्चा होना, दुकान का ओपनिंग होना, ये मंगल कार्यक्रम है, मंगल गीत गाते। बट ये संसार के मंगल अमंगल में बदल सकते हैं। बेटी की शादी हुई तो विधवा हो सकती है, घर छोड़ के आ सकती है। बेटा हुआ तो चला जा सकता है, दुकान हुई तो जल सकती है, घर गृह प्रवेश हुआ तो भूकंप में जा सकता है। संसार के मंगल अमंगल में बदलते देखे जाते हैं। लेकिन जो इस मंगल में आ जाता है, इस मंगल यानी जिसके जीवन में मंगल आचरण प्रारंभ होता है, उसका कभी भी कोई भी अमंगल नहीं होता है, अल्टीमेट मंगल होता है। तो इसलिए ये मंगलाचरण के ऊपर अब ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी मार्मिक बात आने वाली है, थोड़ी सी मार्मिक नहीं, थोड़ी सी टेक्निकल बात है कि ये जो तत्वार्थ सूत्र का जो पहला सूत्र है,
पहला सूत्र कौन सा है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसके ऊपर पूज्यपाद स्वामी ने ये मोक्ष मार्ग से नेतारम वाला मंगलाचरण लिखा। इन दोनों को रख करके आचार्य समंत भद्र स्वामी ने 115 श्लोकों में आप्त आप्त मीमांसा, जिसका अपर नाम है देवागम स्तोत्र, देवागम से शुरू होता है इसलिए उसका नाम देवागम स्तोत्र, बट उसमें आप्त की बड़ी भारी चर्चा की गई है। और ये टेक्स्ट हमने एमए जेनोलॉजी में पढ़ा था। आप्त किसे कहते हैं? उसकी मीमांसा, मीमांसा यानी स्पेक्यूलेशन, हु इज एन अथॉरिटेटिव पर्सन। देखिए, ये जब तत्वार सूत्र क्यों संस्कृत में लिखा गया, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा, तभी इसका आंसर खुलेगा। जब आगम व्यवस्थित हो चुके थे या हो रहे थे, जो भी हो रहा था, हम देख रहे हैं कि भारतीय दर्शन में 9 प्रकार के दर्शन प्रमुख है। इंडियन फिलोसॉफिकल स्ट्रक्चर में, फिलोसफी की स्टडी में 9 दर्शन, जिसको षट दर्शन में समाविष्ट किया गया है। हिंदू लोगों ने षट दर्शन लिखा तो उसमें उन्होंने जैन बौद्ध चार्वाक को छोड़ दिया। और उनके षट दर्शन में कौन से 6 दर्शन मिलेंगे आपको? तो पहला है पूर्व मीमांसा, जिसको वैदिक साहित्य, उत्तर मीमांसा जिसको वेदांत बोलते हैं, फिर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, ये 6 दर्शन की चर्चा आपको वैदिक परंपरा में षट दर्शन के नाम से प्रसिद्ध। और इन सब के अपने अपने ग्रंथ संस्कृत में लिखे जा रहे थे। वेदों के ऊपर व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र लिख दिया संस्कृत में। और कहां से शुरुआत की उन्होंने? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अब हम ब्रह्म की जिज्ञासा करेंगे। और दूसरी तरफ पतंजलि ने लिख दिया अथ योगानुशासनम, अथ मतलब अब हम योग का अनुशासन क्या है उसकी चर्चा करेंगे। तो ऐसे न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग ने भी अपनी अपनी बात रख दी। फिर जैन हरिभद्र सूर्य 8वीं शताब्दी में, उन्होंने ग्रंथ लिखा षट दर्शन समुच्चय। वहां पे 6 दर्शन कौन से हैं? तो जैन, बौद्ध, चार्वाक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा को उन्होंने एक कर दिया तो 4, न्याय वैशेषिक को एक कर दिया तो 5, और सांख्य और योग को एक कर दिया तो 6। तो इस प्रकार 6 में 9 दर्शनों की चर्चा हरिभद्र सूर्य अपने षट दर्शन समुच्चय में करते, 8वीं शताब्दी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सारे जो फिलोसफीज थे, उनके उनके फिलोसफर्स थे, वो अपनी अपनी बात संस्कृत में रख रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे, खंडन मंडन चल रहा था, राजा बैठता था, पब्लिक बैठती थी, सब लोग वार्ता को सुनते थे। फिर जो जीतता था राजा उनको इनाम देता और वो राजा उसको पेट्रनाइज करना चालू कर। तो इस प्रकार ये 2000 साल के इतिहास में अपने को राजा महाराजाओं के पेट्रनाइजेशन से और अपने आचार्यों के लेखनी के कारण अपने को इतना विस्तृत साहित्य मिलता है, तत्वार्थ सूत्र और उसकी टीकाएं। और उसके बाद उसके बेसिस पर आप देखिए, उसके ऊपर लिखे गए जितने भी न्याय के ग्रंथ है, जितने भी जैन लॉजिक के ग्रंथ है, दे ओव देयर क्रिएशन टू द मंगलाचरण ऑफ तत्वार्थ सूत्र एंड सर्वार्थ सिद्ध। मैं वापस बोल देती हूँ, जैन न्याय अगर किसी कोख से निकला है तो वो है तत्वार्थ सूत्र के मंगलाचरण और पूज्यपाद स्वामी के मंगलाचरण से निकला न्याय के ग्रंथ। क्यों? अब क्वेश्चन उठता है कि उन्होंने संस्कृत में क्यों लिखा? क्योंकि उस समय सब लोग संस्कृत में डिस्कशन कर रहे थे, डिस्कोर्स कर रहे थे, वाद विवाद कर रहे थे। तो दे से नो नेसेसिटी इज अ मदर ऑफ इन्वेंशन। तो जरूरत आन पड़ी थी, इसलिए ये ग्रंथ संस्कृत में उभर करके सामने आए। दूसरी एक किंवदंती, किंवदंती समझते हैं, ऐसा सुनने में आता है, इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं है, ऐसा एक कहा जाता है कि एक शिष्य ने लिख दिया कहीं पर दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो आचार्य को लगा अरे ये कैसे? दर्शन ज्ञान चरित्र तो सब जीवों में है, दर्शन ज्ञान चरित्र सब जीवों में है, लेकिन जब तक ये तीनों सम्यक नहीं होंगे मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, किसी का भी नहीं हो सकता।
चाहे आप इस बात को जानो या मत जानो, मानो या मत मानो, एक्सेप्ट करो या मत करो, जिनके पास ये तीन नहीं है, चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई भी रहने दो। यहाँ पर ये नहीं समझना सम्यक दर्शन का मतलब जैन दर्शन है, नो। आत्मदर्शन, नो। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान। भगवान चाहते थे तो, आचार्य चाहते थे तो आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, आत्मरमण भी लिख सकते थे, मोक्ष मार्ग है। लेकिन ये सब फिलॉसफीज में, 9 फिलॉसफीज में एक्सेप्ट चार्वाक, आत्मा की डिस्क्रिप्शन अलग 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 मिलते हैं। यहाँ तक कि आत्मा को कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो कॉन्शियसनेस की जो अवधारणा जैनिज्म में है वो बुद्धिज्म में अलग है, वेदांत में अलग है, वेस्टर्न फिलॉसफी में अलग है, साइकोलॉजी में अलग है ना। आत्मा की बात तो सब करते हैं, लेकिन आत्मा की अवधारणा, आत्मा की जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब फिलॉसफीज में अलग अलग। और एक बात, ये एक्सेप्ट द सोल एक्सेप्शन ऑफ चारवाक, all the 8 systems believed in liberation. Some called it Kaivalya, some called it Nishreyas, some called it as Nirvan, some called it as Moksha. So all these 8 philosophies were unanimous about moksha, but they were not unanimous about the moksha marga. एक भगवत गीता में उठा के देख लो, वहां पर ज्ञान मार्ग से हो सकता है, भक्ति मार्ग से हो सकता है, कर्म योग से हो सकता है ना, ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, फिर राज योग, सहज योग, हठ योग, ऐसे कितने योग की परंपरा से लिबरेशन की बात करते हैं। लेकिन तत्वार्थ सूत्रकार कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि, यहाँ पर नॉट इंडिविजुअली ईच वन, यूनिटी ऑफ ऑल द थ्री, unity of all the three is moksha marga, the pathway of liberation. तो इस मंगलाचरण के ऊपर हमें मिलता है समंत भद्र स्वामी का देवागम स्तोत्र, जिसका अपर नाम आप्तमीमांसा है, और जो कि गंधहस्ती महाभाष्य है ना, जो कि आज अनुपलब्ध है, ये उसका मंगलाचरण। यानी मंगलाचरण इटसेल्फ गोज ऑन टू 115 श्लोक। सोचिए आप, इमेजिन ही नहीं कर सकते अपन अपने आचार्यों की भक्ति और अपने आचार्यों का जो टैलेंट है, उसके बारे में तो हम सिर्फ यशोगान कर सकते हैं, इमेजिन भी नहीं कर सकते। 115 श्लोकों में मंगलाचरण। और फिर सुनिए ध्यान से, उस मंगलाचरण के ऊपर देवागम स्तोत्र प्लस प्लस तत्वार सूत्र का मंगलाचरण के ऊपर 800 श्लोकों में हमें मिलता है अष्टशती नाम का अकलंक, भट्ट अकलंक का ये अष्टशती नाम का ग्रंथ। अष्टशती यानी 800, अष्ट यानी 8, शत यानी 100, 800 श्लोकों में एक ग्रंथ। फिर यहाँ नहीं रुका, फिर उसके देखो आगे अष्टशती के ऊपर विद्यानंद जी ने 8000 श्लोकों में अष्ट सहस्री लिखा, 8000। आप सोचो, कहते ना नालंदा 6 महीने तक जल रहा था। कितने कितने अपने ग्रंथ भारतीय विजडम के, इंडियन भारतीय ज्ञान परंपरा के, आज गवर्नमेंट भारतीय ज्ञान परंपरा को बहुत बड़े वे में प्रमोट करती है, लेकिन आप यहाँ पर देखिए भारतीय ज्ञान परंपरा किस प्रकार इस मंगलाचरण को लेकर के इन आचार्यों ने, इन्होंने समंत भद्र ने, भट्ट कलंक ने, अकलंक देव इज डिफरेंट फ्रॉम भट्ट कलंक, एंड देन विद्यानंद जी ने उनके ऊपर लिखा। और फिर आगे 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 न्याय के जितने भी लेजेंडरी और आचार्य हुए, वो सब इधर से ही उस बात को आगे बढ़ाते हुए हमें दिखते हैं। तो इस प्रकार ये मंगलाचरण, ये इंट्रोडक्शन ऑफ तत्वार सूत्र पूरा हुआ। और फिर मैं आपको सिर्फ फर्स्ट चैप्टर के बारे में बता करके अपने वक्तव्य को विराम दूंगी। फर्स्ट चैप्टर हो सके तो आप सब जो है इसको कंठस्थ करना चालू करें, है ना, इसका काव्य पाठ करिए, इसका कंठस्थ करिए। स्कूल्स में बच्चों को इसका मतलब काव्य पाठ कराते हुए उनको इनाम दीजिए। घर घर में ये तत्वार सूत्र गाया जाए, बजाया जाए, और इसके ऊपर चिंतन किया जाए, क्योंकि ये सीधा हमें अपनी आत्मा से और पूरा यूनिवर्स यानी पूरे कॉस्मिक एनर्जी और से जोड़ता है, यूनिवर्सल विजडम से जोड़ता है ना।
तो बात आई थी कि एक आत्मा के बारे में ही बताना था, तो पूरा यूनिवर्स के बारे में क्यों बताया? क्योंकि सुनिए, मैं बताते बताते बीच में रह गई थी कि ये जो आत्मा है ना, वो अजीब से मिली हुई होते हुए भी अलग है, अलग होते हुए भी मिली हुई है। तो ये इन दोनों में भेद विज्ञान कराने के लिए पूरा यूनिवर्स का ज्ञान दिया गया। समझ में आया? ये इन सब से कैसे अलग है बताने के लिए, पूरे यूनिवर्स में इसका क्या रोल है वो बताने के लिए इंसिडेंटली पूरे यूनिवर्स का ज्ञान भी यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र में दे दिया गया है। तो पहले चैप्टर में 33 सूत्र है, और ये हम अगले क्लास से पढ़ना चालू करेंगे, इसका अध्ययन चालू करेंगे। आज की क्लास में यही समाप्त करती हूँ। आपके कोई क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, सजेशन है या ग्रीवेंस है? मैडम तत्वार्थ सूत्र बहुत बोरिंग है मैडम, बहुत बार पढ़ लिया, मत पढ़ाओ। आई एम ओपन फॉर एनीथिंग। नहीं, मत पढ़ाओ मैडम, तो आई एम ओके, मैं टाटा बाय बाय सी यू चली जाऊंगी, नो प्रॉब्लम, है ना? यू आर ओपन, यू आर वेलकम टू से। ठीक है, चलिए। तो ओम नमः सिद्धेभ्यो, थैंक यू टू एवरीबॉडी। आपके क्वेश्चन आंसर्स, नाउ इट्स योर टर्न। थैंक यू मैडम। किसी के प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्लीज। Dr. Jen, I have a question.